Hello students, today I am going to explain Dalton atomic theory, and this theory will prove that the validity of law of chemical combination. Already we have read in our previous classes law of chemical combination. Now today I am going to explain which kind of atomic theory given by Dalton. So student, do you know matter that having mass and which can occupy space? Okay, so you know matter having mass and matter can occupy space. So according to Dalton, the very smallest particle which is present in matter is called atom, and that's one you also know. So according to Dalton atomic theory, the first point is matter of very smallest particle is known as atom. Okay, second point, for element an element having an element consist same type of atom and their mass, shape and size will always identical. So according to Dalton, an element for a single element, that element is made by very smallest particle, that atom, and atom will always same in shape, in size and in mass. For example, if I am taking here an example of gold, this one is element. Gold, the symbol of gold is AU. And when we take very smallest particle from gold, this particle is known as gold. But smallest particle is the atom of gold. Okay, ये जो smallest particle है गोल्ड में से वो क्या है? एटम्स है, लेकिन ये होंगे क्या? गोल्ड के ही होंगे, एंड इनके जो साइज होंगे, शेप होंगे, साइज होंगे, शेप होंगे, क्योंकि ये सेम ही एलिमेंट से मिले हैं तो इसलिए सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डिफरेंट एलिमेंट the mass, shape and size will be different for different element of atom. अगर दो अलग अलग एटम्स लिए जाएं, एलिमेंट्स लिए जाएं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर सिल्वर और ये गोल्ड, इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखे जाएं तो ये पार्टिकल, यहाँ वाले पार्टिकल्स का साइज, शेप यहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिल्वर है तो यहाँ का तो सेम होगा, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों का साइज, शेप एक दूसरे के कंपेयर में डिफरेंट होगा. Why it will be different? Because of these elements are different. These elements will show different kind of property. These elements having different mass, so that they will show different type of shape and size. Is it clear? So this third point. After third point, Dalton has told, this one I am going to rub. Dalton has told atom neither we create and nor we destroy. Okay, already we know nor we destroy. Already we know atom neither we create and nor we destroy. Okay, so
as we already know, for energy neither we create nor we destroy. So atom is also neither we create nor we destroy, means डाल्टन के अकॉर्डिंग ये ना हम बना सकते हैं और ना ही इसे खत्म कर सकते हैं. ओके, सो दिस वन फोर्थ पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन आई एम गोइंग टू रब दिस वन. ये बाद के पॉइंट आप लिख चुके होंगे ना, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन when two same element of atom or different element of atom combine together always form compound. ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन हो या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम कंबाइन हो तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे. क्लियर है. अच्छा, अभी इसी को हम लोग आगे समझेंगे. ठीक है, तो इस चीज को अभी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, आपको वैसे पता होगा कि मोर देन एलिमेंट कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने बोली है. लास्ट पॉइंट बोला है डाल्टन ने कि जो भी कंपाउंड बनते हैं वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में होते हैं. सो कंपाउंड will always combine in simplest ratio. ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो में क्या होंगे, कंपाउंड्स कंबाइन होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CaCO3, कैल्शियम देखो 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है. ये रेशियो क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर है. ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि होल नंबर ऑफ रेशियो है. ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, जो भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, उनका रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर होता है. तो अब हम लोग फिंगर टिप पे रिकॉल कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू डाल्टन, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम मैटर इज नोन एज एटम. सेकेंड, सिंगल एलिमेंट, फॉर एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम. एक एलिमेंट में प्रेजेंट जितने भी एटम होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, मीन्स शेप, साइज एंड मास सेम होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फॉर डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटम्स and different mass, shape and size. If we are going to compare two elements, so both elements having different kind of atoms, so that they will show different type of shape, size and mass. Okay, next point he has told, when atom neither we create nor we destroy. Okay, एटम इनके अकॉर्डिंग ना हम बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं. लास्ट पॉइंट मीन्स सेकेंड लास्ट पॉइंट, व्हेन मोर देन एटम मीन्स व्हेन सेम टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ एटम will combine together, they form compound, and compound will always show simplest whole number of ratio. For example, calcium carbonate having simplest ratio, that is 1:1:3. Okay, for water also we can say water having simplest ratio, that is 2:1. Is it clear? So take a screenshot and write with me. Now student, I am going to discuss about the limitation. Limitation means डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, चलो डिस्कस करते हैं. सबसे पहली लिमिटेशन है कि इनका कहना था कि जो भी एटम्स होते हैं ना एक ही एलिमेंट के, उनका साइज, शेप सेम होता है. तो इन्होंने फॉर आइसोटोप्स लिमिटेशन क्या है, फॉर आइसोटोप्स Dalton has not given
for isotopes, Dalton has not given any proof for mass, shape and size. ओके, मीन्स जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1S2, 1S3. ठीक है, देखो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स इसे क्या बोलते हैं? प्रोटियम, इसे ड्यूटीरियम और इसे ट्राइटियम. ठीक है, ये जितने भी आइसोटोप्स हैं इनके देखो फॉर्मूले में एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास डिफरेंट है. तो डाल्टन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या होते हैं, एलिमेंट्स के एटम के मास, साइज, शेप सब सेम होते हैं. यहाँ पर सेम नहीं है, तो इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई प्रूफ नहीं दिया था, कोई अपना जो भी पॉइंट्स था अपना एक्सप्लेनेशन नहीं रखा था. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने कहा था जो कंपाउंड मिक्स बनते हैं वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं. बट according to Dalton compound always in simplest ratio. Okay, तो but for few compound कौन से कंपाउंड, जैसे कि C12, H22O11, इस तरीके का कंपाउंड, इसका रेशियो देखो 12:22:11. क्या सिंपलेस्ट है? नहीं है. तो इसका मतलब इन्होंने कुछ कंपाउंड्स के लिए अपना कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था कि दे कैन शो this kind of ratio also. These ratio are not simplest whole number and give this kind of ratio. This kind of ratio is not simple ratio. Is it clear? तो ये एक सिंपल रेशियो नहीं है, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था, या फिर हम कह सकते हैं कि इस तरीके के कंपाउंड के लिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते हम. क्लियर? तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए. अब तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग उसे ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, लेकिन for nuclear reaction Dalton has not given any proof, because in nuclear reaction atom can change into energy form. Okay, and for nuclear reaction Dalton has not या फिर हम लोग ये लिमिटेशन भी बोल सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं. तो नॉट गिवन एनी proof because atom can change into energy form in nuclear reaction में क्या होता है, एटम किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में निकल जाता है. इसका मतलब क्या हुआ कि वो एटम क्या हुआ, एनर्जी में बदल गया. यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एटम आपका क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि एनर्जी बन गया है. तो यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए डाल्टन का ये पॉइंट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं. कौन सा पॉइंट? दैट इज एटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, because in nuclear reaction it can be destroyed, it can be changed into energy form. Okay, so student, these are the points and limitations of Dalton atomic theory. Write one by one point in your copy and read these points carefully, and watch your previous video also for your concepts so that you can clear it. And now today only this one point, and in next video I will explain next point. Okay, so thank you so much students. Bye bye.